Good morning, class. Let's start this chapter, Long Walk to Freedom, written by Nelson Mandela. This is an autobiography. In this chapter, we will study about Nelson Mandela's long walk towards towards his nation freedom, and one more thing, student. This chapter is very important from your board examination point of view. In this year 2019-20, one 2 marks question was also there in the examination. So let's see how his long work towards freedom went. We will study through this chapter. Apartheid is a political system that separates people according to their race. So let's start with the apartheid. It's a system. It's a system that is created by other people to segregate people to their different race, caste, creed, or it can be anything. So it is the one people segregating the other people in terms of their race, caste, or anything. So what happened, let's see. Nelson Mandela and his African National Congress spent a lifetime fighting against apartheid. Mandela has spent 30 years in prison, 30. So here Nelson Mandela has spent his 30 years in prison to fight against apartheid. Finally, democratic elections were held in South Africa in 1994, and Mandela became its first black president of new nation. So class, a very motivating chapter. We will see how Nelson Mandela fought against this political system apartheid in his country South Africa. He finally democratic elections were held in South Africa in 1994, and he became the first black president of India. So this is the way he fought against. Nelson Mandela has become the South Africa's first black president after more than 3 centuries of white rule. Mr. Mandela's National Congress Party won 252 of the 400 seats in the first democratic election of South Africa's history. So he fought against apartheid. He became the first black president of his nation. The inauguration ceremony took place in the Union Building Amphitheatre in Pretoria. So this is the inauguration ceremony in the South Africa in the amphitheater. Amphitheater is the stadium-like building, stadium-like place where that is out of roof. Roof नहीं होता है, and the other people can all the people can sit it in at one roof, okay, without any roof. चलिए, attended by politicians and dignitaries from more than 140 countries around the world. So this is the day when the inauguration of democracy in South Africa is restored, and the dignitaries and the politicians, they are coming to the South Africa to uh, to give their presence on this special day. Never again will this beautiful land experienced the oppression of one by another. So here Nelson Mandela tells about that this fateful day will never come. This unfaithful day will never come to to our country, where people of the country have to undergo to this apartheid system. So here, jubilant scenes on the streets of Pretoria followed the ceremony with blacks, whites, and colored celebrating together. So here, the South African men, women, and children of all races sang and danced with joy. So this is the jubilant scene on the streets of Pretoria, where in the South Africa, where all the people, they are celebrating, they are they are rejoicing, they are like dancing, singing with the full great joy that now they are free from, their country is free from this apartheid, this political system that separates one people to the another with this feel of their
different in race. So here, in all about this, we have talked about how this inauguration ceremony is taking place uh, in the South Africa, and their people, they are rejoicing, they are having the jubilant scene. तो यहाँ हमने देखा कि किस तरीके से नेल्सन मंडेला हैं, साउथ अफ्रीका के फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट बनते हैं अपने 30 साल के प्रेजेंट के बाद, लड़ाई के बाद. लेट्स सी व्हाट नेक्स्ट. 10th May dawned bright and clear. For the past few days, I had been pleasantly besieged by dignitaries and the world leaders who were coming to pay their respects before the inauguration. So this is the 10th May. 10 मई का दिन है. काफ़ी खुशनुमा मौसम है, क्लियर है. और पिछले कुछ दिनों से नेल्सन मंडेला को वर्ल्ड लीडर्स, दे आर कमिंग फॉर द इनाग्रेशन. वो आ रहे हैं एंड गिविंग ऑल देयर best wishes to them. The inauguration would be the largest gathering ever of international leaders on South African soil. So this is the great day. Naturally, किसी आप एक बुराई को ख़त्म करते हैं और उस पर विजय प्राप्त करते हैं तो ऑब्वियसली बहुत बड़ा दिन होता है. तो इस तरीके से एपार्थाइड सिस्टम को ख़त्म करके एक डेमोक्रेसी रिस्टोर होती है साउथ अफ्रीका में, और ये सबके लिए बहुत खुशी की बात होती है. इसीलिए और बहुत सारे लोग, इंटरनेशनल लीडर्स, सभी लोग पूरे साउथ अफ्रीका की धरती पे सब लोग इकट्ठा होते हैं इस बड़े दिन को मनाने के लिए. लेट्स सी व्हाट नेक्स्ट. द सेरेमनीज टुक प्लेस इन द लवली सैंडस्टोन एम्फी थिएटर फॉर्म्ड बाय द यूनियन बिल्डिंग्स इन प्रिटोरिया. तो ये जो सेरेमनीज हैं, एम्फी थिएटर, वी डिस्कस अबाउट अ बिल्डिंग विदाउट अ रूफ. एक बिल्डिंग है बिना रूफ के, बिना छत के, जहाँ पर जैसे स्टेडियम होता है जिस पे रूफ नहीं है और बहुत सारी सीढ़ियाँ, आप उस पर बैठ सकते हैं. तो प्रिटोरिया में ये होती है. फॉर डेकेड दिस हैड बीन द सीट ऑफ वाइट सुप्रमेसी. तो दशकों से यहाँ पर जो रंग में सफ़ेद थे उनका अधिकार रहता था. नाउ इट वॉज द साइट ऑफ अ रेनबो गैदरिंग ऑफ डिफरेंट कलर्स. और अब ये दृश्य है जहाँ पर इंद्रधनुष भी आए हैं अपने विभिन्न रंगों से. नेशंस फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट. तो यहाँ पर इंद्रधनुष के रंगों को प्रतीक माना जा रहा है खुशी का, और यहाँ पर वेलकम का. किस चीज़ के वेलकम का? एक डेमोक्रेटिक, एक स्वतंत्र और स्वतंत्र देश का, जहाँ पर स्वतंत्रता मिली है साउथ अफ्रीका के लोगों को. किस चीज़ से? एक एपार्थाइड, जहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव की नीतियों से उनको मुक्ति मिली है. दैट इज़ नॉन रेशियल गवर्नमेंट, जहाँ अब किसी के साथ भी भेदभाव नहीं होगा जस्ट बिकॉज ही इज़ डिफरेंट इन कलर, कास्ट और creed. On that lovely autumn day, I was accompanied by my daughter Zenani. On the podium, Mr. D. Clark was first sworn as the second deputy president. तो बहुत ही सुंदर दिन था, और नेल्सन मंडेला अपनी बेटी के साथ जाते हैं उस पोडियम पे जहाँ पर सबसे पहले ओथ लेते हैं. दैट इज़ द सेकेंड डेप्यूटी प्रेसिडेंट. Thabo Mbeki was sworn in as first deputy president. When it was my turn, I pledged to obey and uphold the constitution and to devote myself to the well-being of the republic and its people. So जब नेल्सन मंडेला की टर्न आती है, he pledged, थैबो मैकबी के बाद जब उनकी बारी आती है, he pledged to uphold the constitution. वो कॉन्स्टिट्यूशन को में आस्था रखने के साथ और वेलबींग, किसके वेलबींग? देश के लोगों के वेलबींग के लिए वो शपथ लेते हैं कि संविधान और लोगों की फ्रीडम को बनाए रखने के लिए वो काम करेंगे. टू द असेंबल्ड गेस्ट एंड द वॉचिंग वर्ल्ड आई सेड, नेल्सन मंडेला अपने भाषण में कहते हैं, टुडे ऑल ऑफ अस डू बाय आवर प्रेजेंस हेयर कन्फर ग्लोरी एंड होप टू न्यू लिबर्टी. कहते हैं दैट वी ऑल हैव असेंबल्ड हेयर एंड गेव द होप टू न्यू बॉर्न लिबर्टी. नए बच्चे के जन्म के जैसे हमने स्वतंत्रता को एक जन्म दिया है, एक छोटे से बच्चे की तरह स्वतंत्रता को जन्म दिया. आउट द एक्सपीरियंस ऑफ एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमन डिज़ास्टर. हमने बहुत बड़ी कुर्बानियाँ दे के एंड बहुत बड़ा डिज़ास्टर देख के ये सब हमने, लाइक वी वॉट एवर वी गॉट दिस टुडे जस्ट बिकॉज ऑफ
वी सफ़र्ड अ लॉट फ्रॉम ह्यूमन डिज़ास्टर। ह्यूमन डिज़ास्टर किस चीज़ को कह रहे हैं? एपार्थाइड सिस्टम को कह रहे हैं, जो कि एक रेशियल डिस्क्रिमिनेशन है जो कि साउथ अफ्रीका में वाइट पीपल के द्वारा ब्लैक पीपल पे किया गया। दैट लास्टेड टू लॉन्ग, जो कि दशकों तक चला, 3 दशकों तक चला। मस्ट बी बॉर्न अ सोसाइटी ऑफ विच ऑल द ह्यूमैनिटी विल बी प्राउड। तो अब जो सोसाइटी बनेगी जिस पे हम सारे गर्व करेंगे। वी हु वर आउटलॉज नॉट सो लॉन्ग अगो हैव टुडे हैव बीन गिवन द रेयर प्रिविलेज टू होस्ट टू द नेशंस ऑफ द वर्ल्ड ऑन आवर ओन सॉइल। जो लोग जिनको प्रिविलेज नहीं दिया गया था, अधिकार नहीं दिया गया था, और नाउ दे आर दी वन, they are doing everything for their nation, for their own soil. We thank all of our distinguished international guests for having come to take possession with the people of our country of what is after all a common victory for justice, for peace and for human dignity. So again Nelson Mandela is also thanking to all the great leaders who have come to witness this great day, and he said these lines, that this is not the victory for South African people and those who sacrifice for their nation. This is the विक्ट्री फॉर, दिस इज़ द कॉमन विक्ट्री। हर किसी लोगों के लिए विक्ट्री है, न्याय की जीत है, शांति की जीत है, और एक ह्यूमन के सम्मान की जीत है। ये कैसी फीलिंग है कि एक ही देश में कुछ लोग सिर्फ इसलिए भेदभाव सहेंगे क्योंकि वो काले हैं, और कुछ लोग इसलिए सब कुछ दे विल गेट एवरीथिंग जस्ट बिकॉज दे आर वाइट इन कलर। सो ये इसीलिए उन्होंने कहा ये मानवता की जीत है। वी हैव एट लास्ट अचीव आवर पॉलिटिकल इमेंसिपेशन। तो इस तरीके से कहते हैं नेल्सन मंडेला कि आज जो ये डेमोक्रेसी रिस्टोर होगी, इसका मतलब ये है कि हमने राजनीतिक जीत भी, राजनीतिक फ्रीडम भी पा ली है। वी प्लेज देम आवरसेल्व्स We pledge ourselves to liberate all our people from the continuing bondage of poverty, deprivation, suffering, gender, and other discrimination. So again, here the Nelson Mandela is focusing on other discrimination, that he wanted to free their countrymen from all of these, जिससे वो आज़ाद करना चाहते थे अपने देशवासियों को, जो थी गरीबी, deprivation, sufferings, जेंडर, अदर डिस्क्रिमिनेशन, और जिस तरह की भी प्रॉब्लम्स थी उनसे से भी वो उनको जिताना चाहते थे। नेवर नेवर and never again shall it be this beautiful land will again experience the oppression of one by another. नेल्सन मंडेला कहते हैं मेरा देश फिर से कभी कभी और कभी नहीं ये चीज़ें देखे कि एक ही कंट्री में कुछ लोग दूसरे लोगों के ऊपर राज करेंगे सिर्फ इसलिए कि दे आर डिफरेंट इन कलर। द सन शैल नेवर सेट ऑन सो ग्लोरियस ह्यूमन अचीवमेंट। और हमारे देश का सूरज और हमारी जो अचीवमेंट है उस पर कभी ना डूबे। लेट फ्रीडम रीन, गॉड ब्लेस अफ्रीका। और हमेशा स्वतंत्रता रहे और भगवान हमें आशीर्वाद दे। दिस इज़ द वे इट एंड्स। A few moments later, we all lifted our eyes in awe as a spectacular array of South African jets, helicopters, and troop carriers roared in perfect formation over the Union buildings. So here again, after the previous paragraph, we seen the pledge of the Nelson Mandela that he was taking in front of all the great leaders, international leaders, and their countrymen. So here the display of the Air Force, the South African jets and helicopters, they are roaring, दहाड़ते हैं आकाश में, they are making formations। आपने देखा होगा 26 जनवरी की परेड में भी, 15 अगस्त की परेड में, लाइक किस तरीके से जो हमारे एयरफोर्स के जो एयरक्राफ्ट होते हैं, प्लेन्स होते हैं, कलर्स निकालते हुए जाते हैं, इंद्रधनुषीय रंग एंड ऑल दैट। इसी तरीके से वहाँ के जो साउथ अफ्रीका के जो जेट्स थे, एयरक्राफ्ट थे, दे आर ऑल्सो डूइंग द सेम थिंग। अ डिस्प्ले ऑफ पिन पॉइंट प्रिसिशन एंड मिलिट्री फोर्स। इस तरीके से साउथ अफ्रीका अपनी उस खास दिवस पे अपनी मिलिट्री फोर्स दिखाता है, बट डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ अ मिलिट्री फोर्स लॉयल्टी टू डेमोक्रेसी। बट ये अपनी लॉयल्टी भी दिखाता है, ईमानदारी भी दिखाता है, किसकी तरफ? डेमोक्रेसी की तरफ। टू अ न्यू गवर्नमेंट दैट हैड बीन फ्रीली एंड फेयरली इलेक्टेड। अपनी वफादारी किसकी तरफ? डेमोक्रेसी की तरफ, और उस अपनी सरकार की तरफ जो कि फ्रीली और फेयरली, जो कि साफ़ सुथरे तरीके से इलेक्ट होके आई है, जिसमें कोई भी डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव नहीं है। ओनली मोमेंट्स बिफोर द हाईएस्ट जनरल्स ऑफ द साउथ अफ्रीकन डिफेंस फोर्स एंड पुलिस, देयर चेस्ट बेडेड with ribbons and medals from days gone by, saluted me and pledged their loyalty। तो जो यहाँ पर कुछ क्षण पहले ही जो जनरल होते हैं,
अधिकारी हैं साउथ अफ्रीकन डिफेंस के, पुलिस के, उनके चेस्ट पे रिबन्स लगाए जाते हैं जो नेल्सन मंडेला लगाते हैं, एंड ही वाज एंड दे वर सैल्यूटिंग हिम बिकॉज ऑब्वियसली नेल्सन मंडेला आज कोई कैदी नहीं है, वो प्रेसिडेंट हैं, राष्ट्रपति हैं उस देश के, सब उनको सैल्यूट करते हैं और उनकी तरफ वफादारी के लिए प्लेज भी लेते हैं. आई वॉज नॉट अनमाइंडफुल ऑफ द फैक्ट दैट सो मेनी ईयर्स बिफोर दे वुड नॉट हैव सैल्यूटेड बट अरेस्टेड मी. तो यहाँ पर कुछ मेजमराइजिंग करते हैं नेल्सन मंडेला, कुछ पुरानी यादें करते हैं, याद करते हैं कि इट वॉज द टाइम जिसके लिए वो बुरा भी नहीं मानते. इट वॉज द टाइम जब ये जनरल्स, ये पुलिस मुझे आते थे अरेस्ट करने के लिए, ना कि मुझे सैल्यूट करने के लिए. फाइनली अ शेवरन ऑफ इम्फला जेट्स लेफ्ट अ स्मोक ट्रेल ऑफ द ब्लैक, रेड, ग्रीन, ब्लू एंड गोल्ड ऑफ द नाउ न्यू साउथ अफ्रीकन फ्लैग. तो यहाँ पर जो एयरफोर्स का जो क्राफ्ट है इम्फला जेट, जो आकाश में जाते हुए 3 रंग से, रेड, ब्लैक, रेड, ग्रीन, ब्लू एंड गोल्ड, इन रंगों से साउथ अफ्रीका का फ्लैग बनाते हुए आकाश में उड़ते हुए जाते हैं. दिस इज द हाउ द डिस्क्रिप्शन ऑफ ऑल अबाउट द display of aircrafts and military power. The day was symbolized for me the playing of 2 national anthems and the vision of white singing Neski Sikil Africa and black singing Destem and the old anthem of the Republic. तो यहाँ पर 2 anthems गाए जाते हैं, राष्ट्रीय गीत गाए जाते हैं, one by the whites and one by the black one. So although that day neither group knew the lyrics of anthem they once despised, they would soon know the words by heart. तो यहाँ पर याद नहीं होता है न्यू एंथम, तो दे वर जस्ट मुँह से बोलते ही हैं और दे इट विल टेक टाइम, बट नेल्सन मंडेला को पूरा विश्वास है कि एंथम सबको याद हो जाएगा. ऑन द डे ऑफ द इनाग्रेशन आई वॉज ओवरवेल्म्ड विद द सेंस ऑफ हिस्ट्री. तो यहाँ पर हमारे जो नेल्सन मंडेला कुछ पुरानी बात याद करते हैं, कुछ इतिहास से याद करते हैं. इन द फर्स्ट डेकेड ऑफ द 20th century, a few years after the bitter Anglo-Boer War and before my own birth. तो यहाँ पर नेल्सन मंडेला कहते हैं he was just getting those bitter Anglo-Boer war जो उनके जन्म से पहले हुई थी, जहाँ पर वाइट स्किन पीपल्स ऑफ साउथ अफ्रीका पैच अप देयर डिफरेंसेस. जिन्होंने जो वाइट पीपल थे जो साउथ अफ्रीका के, उन्होंने पैचअप किया ब्लैक पीपल से, जो कि जिनका कलर ब्लैक था, साउथ अफ्रीका के ही निवासी थे, उन्होंने उनसे पैचअप किया. बट दे मेड अ डिफरेंट सिस्टम फॉर देम. उन्होंने युद्ध तो जो एंग्लो बोर वॉर था वो वाइट नेशनल्स और ब्लैक नेशनल्स में था साउथ अफ्रीका के, बट दे वाइट पीपल्स दे एंटर्ड द वॉर जस्ट with the some regulations on the black people. That was the racial discrimination to the black people of Africa, that they can't do this that way. उनके लिए कुछ अलग से नियम बनाए गए उन्हीं के देश में. आप सोचिए कि आपको बोला जाए कि आप जो लोग काले हैं वो दाएं से चलेंगे और जो लोग जिनका कलर साफ़ है वो बाएं से चलेंगे, एंड दे और कोई बदल नहीं सकता अपना रोड एंड ऑल दैट. तो किस तरीके की फीलिंग आएगी कि देश एक ही है एंड हाउ कैन ब्लड एक ही है, बट हाउ कैन इट बी द रूल्स आर डिफरेंट. And the same way the rules were different in those days to the South African people. So it was a really bad patch on humanity. एक बहुत ही धब्बा था ह्यूमैनिटी, मानवता के ऊपर इस तरीके से डिस्क्रिमिनेट करना, भेदभाव करना. तो ये सारी चीज़ें नेल्सन मंडेला याद करते हैं इस इनाग्रेशन पे, अपनी डेमोक्रेसी की इनाग्रेशन पे ये सब चीज़ें याद करते हैं और काफ़ी भावुक हो जाते हैं. सो क्लास, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर. अगेन एंड अगेन आई एम टेलिंग यू, हम लोग इस चैप्टर को अपने इंडिपेंडेंस से भी रिलेट कर सकते हैं. किस तरीके से हमारे साथ लाइक वी वर डिस्क्रिमिनेटेड बाय द ब्रिटिशर्स इन आवर ओन कंट्री. वी का अर्लियर आवर फोरफादर्स दे डिडंट यूज, मतलब वो यूज़ नहीं कर सकते थे खुद की चीज़ें खुद से. तो इट वॉज अ टाइप ऑफ that apartheid, and it is the in South Africa the different racial discrimination was done. I hope you all are getting it. Okay class, ठीक है, let's see what next. Overturned forever and replaced by one that recognize the rights and freedom of all peoples regardless of color,
of their skin. That day had come about through the unimaginable sacrifices of thousands of my people. So here Nelson Mandela um, tells about those sacrifices that had come from unimaginable sacrifices, thousands of my people. So their countrymen had sacrificed for this day, the day of democracy, the inauguration of democracy in their country. People whose sufferings and courage can never be counted or repaid. He said that those sufferings cannot be counted and cannot be weighed in money or anything. जो सेक्रीफाइसेस लोगों ने दिया, अगर मैं कहूँ कि अगर भगत सिंह के हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स थे उनके सेक्रीफाइसेस को हम चलो पैसे में तोलते हैं तो कैन इट बी पॉसिबल? तो देर आर मेनी थिंग्स दैट कैन नॉट बी काउंटेड और रीपेड. इन द सेम वे आई फेल दैट day as I have on so many other days, that I was simply the sum of all those African patriots who had gone before me. तो यहाँ पर वो नेल्सन मंडेला कहते हैं कि ये सारी चीज़ें वॉट एवर दैट इज़ गोइंग ऑन दिस पर्टिकुलर डे, हाउ इट हैड हैपन, किस तरीके से हो रही हैं. लाइक जो भी हमारे फोर फादर्स ने जो लड़ाइयाँ लड़ी, 30 years ऑफ प्रिजन उन्होंने देखा, उसका जो आज का जो आउटपुट था, जो सम था, वो ये है कि आज डेमोक्रेसी रिस्टोर होती है उनके कंट्री में. और जो इस तरीके से दैट लॉन्ग एंड नोबल लाइन एंडेड एंड नाउ बिगैन अगेन विथ मी. तो वो जो लाइन उन्होंने स्टार्ट की थी वो कुछ समय के लिए कट गई थी, बट फाइनली वो अब आगे की तरफ बढ़ती है. आई वॉज पेन दैट आई वॉज नॉट एबल टू थैंक देम and that they were not able to see what their sacrifices had wrought. तो यहाँ पर नेल्सन मंडेला, ही वॉज फीलिंग बैड, ही वॉज फीलिंग पेन, ही वॉज इन पेन दैट ही वॉज नॉट एबल टू थैंक, कि उनको थैंक्स नहीं कर सकते हैं वो लोगों को जिन्होंने सेक्रीफाइस किया ये अपने देश के लिए. और उनको वो बताना चाहते हैं कि लाइक हाउ देयर सेक्रीफाइसेस created a change in their country and to the lives of the people. किस तरीके से कंट्री में चेंज लेके आए उनके सेक्रीफाइसेस ने और लोगों में. द पॉलिसी ऑफ एपरेथाइट क्रिएटेड अ डीप एंड लास्टिंग वूंड इन माई कंट्री एंड माई पीपल. तो कहते हैं नेल्सन मंडेला, जो एपरेथाइट की जो पॉलिसी थी, भेदभाव की जो नीति थी, वो उसने मेरे एक कभी ना भूलने वाले घाव की तरह, कभी ना ख़त्म होने वाले घाव की तरह मेरे लोगों में और मेरे देश में दिया. All of us will spend many years, if not generation, recovering from that profound hurt. तो कहते हैं जनरेशन टू जनरेशन लग जाएगा इस चीज़ से रिकवर होने में, बट वी विल रिकवर, कि हम ज़रूर इससे उभरेंगे. बट द डेकेड्स ऑफ ऑपरेशन एंड ब्रुटैलिटी हैड अनदर अनइंटेंडेड इफेक्ट. तो इतने साल जो उन्होंने सफरिंग्स झेली, ब्रुटैलिटी, जो उन्होंने पीड़ाएं सही, उसका क्या इफेक्ट था? दैट वॉज दैट इट प्रोड्यूस द ऑलिवर टैम्बोज, द वॉल्टर सिसलेस, द चीफ लुथलेस, the Yusuf Dados, the Bram Fishers, the Robert Subkus of our time, men of such extraordinary excellence. तो ये जितनी भी सफरिंग्स उन्होंने देखी, उनके देश ने देखी, ये सब चीज़ों से उभर के आए इतने सारे ग्रेट लीडर्स जिन्होंने देश के लिए काम किया और अपनी बातों को आगे रखा. सो क्लास हम लोग अपने इंडिपेंडेंस से भी सीख सकते हैं, देख सकते हैं, और देखा भी हमने, पढ़ा जैसे कि किस तरीके से जो चीज़ें हम बुरी चीज़ों के लिए फाइट करते हैं, उसमें लाइक it took lot of things, time, blood, each and everything, but it also gives many thing. बहुत सारी चीज़ें भी देता है हमारी जनरेशन के लिए. कैसे हमारे फोर फादर्स ने दे फॉट फॉर द फ्रीडम, इंडिपेंडेंस. नाउ वी आर टेकिंग द फ्रूट्स ऑफ व्हाट दे हैड डन. तो जो उन्होंने किया उसकी वजह से आज हम लोग फ्री हैं, फ्री इंडिया में जी रहे हैं. तो दैट्स वाई, सो इन द सेम मैनर यहाँ पर नेल्सन मंडेला भी उन सभी लोगों को थैंक्स बोलना चाहते हैं जिन्होंने सेक्रीफाइस किया, और वो सिस्टम से लड़ने के लिए बहुत सारे नए नए लोग आए सामने, जिनको लोग शायद पहले कभी जानते नहीं थे. और इस तरीके से ये चीज़ें स्टार्ट हुई. चलिए फटाफट से एक बार रिविजन करते हैं. सो आर नेल्सन मंडेला चैप्टर इज़ बेसिकली अबाउट इट्स एन ऑटोबायोग्राफी दैट वी डिस्कस. ऑटोबायोग्राफी तो है ही. तो जो डेमोक्रेसी रिस्टोर होती है साउथ अफ्रीका में, उसके बारे में ये सारी कहानी हमारे नेल्सन मंडेला लिखते हैं. किस तरीके से उनके 30 years ऑफ प्रिजन
एक सिस्टम, पॉलिटिकल सिस्टम के अगेंस्ट लड़ने के लिए था। वो क्या था पॉलिटिकल सिस्टम? दैट इज़ एपर्थाइड। एपर्थाइड क्या था? एक जिसमें लोगों को सेपरेट किया जाता था उनके कास्ट, कलर और क्रीड पे, उनके, गेट इट। उसके बाद हमने देखा जब फाइनली दे वॉन, तो इनाग्रेशन ऑफ डेमोक्रेसी होती है। नेल्सन मंडेला ओथ लेते हैं जिसमें वो अपने कॉन्स्टिट्यूशन और अपने लोगों की का टेक केयर करने के लिए प्लेज लेते हैं। मिलिट्री जो पावर है वो अपनी पावर डिस्प्ले करती है और अपनी लॉयल्टी दिखाती है अपनी सरकार के। आई होप क्लास you all got this in the, so class, this is the part 1, and again we have 3 pages left. We will do in the next part 2. Till the time, revise it, all these paragraphs, these stanzas, very important, not just because of you have to attempt the question in your exam, just because this is a very motivational chapter. And okay, thanks.